Let us talk about the date add function in DAX. Suppose as a business owner I want to know 1st of March को अगर 1194 का सेल हुआ है तो 1st Feb को कितना हुआ है, exactly 1 month ago, right? So as a business, for whatever reason I want to compare the sales that are happening on the specific days. तो रीज़न कुछ भी हो सकता है. तो अगर मुझे कोई स्पेसिफिक इंटरवल के पीछे का या आगे का डेटा अगर चाहिए तो उसके लिए मतलब बेसिकली डेट शिफ्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं. अगर मुझे 1st of March को एक महीने पहले का चाहिए, एक क्वार्टर पहले का चाहिए, एक साल पहले का चाहिए, वट एवर इट इज, जो भी मुझे डेटा कंपेयर करना है उस हिसाब से आई शुड बी एबल टू शिफ्ट द डेट्स एंड कंपेयर द डेटा. तो जब आप लोग डेट ऐड फंक्शन को यूज करोगे, दैट विल गिव यू अ न्यू कॉलम. और जो भी आपको चाहिए रहेगा, एक महीने पहले का, 6 महीने पहले का, नो, that data you will get here. Okay, so this is the purpose of using date add function. Now let us see how exactly it is done. So I have got this data set which I have already imported here. Okay, this has got date, product and sales. जो आपको डेट दिख रहा है वो 2025 में जैन से लेकर अप्रैल के डेट से है, और उसके कुछ सेल्स दिए हैं. Now the first thing that we'll do is we'll create a new measure. So I'll click on new measure, and let's name this measure as date add fun. Can we directly make use of date add function? नहीं कर सकते, बिकॉज अगर मुझे सपोज सम करना है तो यहाँ पे सम कहाँ पे, सम के लिए कोई पैरामीटर है ही नहीं. So rather what I will do, I will make use of the calculate function, and within the calculate function I'll make use of the date add. So expression में मैं बोलूँगा sum of what, sum of तो sales रहेगा as usual. Then I'll put a comma, then I'll put a comma, and within the filter, अब जब मुझे filter देने की बात आ रही है तब मैं इसको बताऊंगा that I want to make use of the date add function. So I am making use of date add. अब जो इसमें dates रहेंगे वो obviously ये date column रहेगा, so I'll make use of this date column, comma, number of intervals. तो number of intervals मुझे एक महीने पहले का चाहिए तो -1. अगर मुझे एक महीने बाद का चाहिए होता आई वुड हैव यूज +1. ओके, देन आई विल सिलेक्ट मंथ, बिकॉज मुझे एक महीने पहले का चाहिए. अगर आपको एक दिन पहले का चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, एक क्वार्टर पहले का चाहिए वो भी मिल जाएगा, एक साल पहले का चाहिए वो भी मिल जाएगा. सो फॉर नाउ आई एम सिलेक्टिंग मंथ, एंड आई विल क्लोज दिस, एंड then I'll hit the enter button. Now after I've done this, let's see the output, and it will not be correct, and as we can see we're getting blank values. That is happening for a very simple, that is because we have not created a date table. तो डेट टेबल फटक से क्रिएट कर लेते हैं, एंड देन ओनली विल बी एबल टू गेट दिस वैल्यू. सो हाउ डू वी डू दैट? गो टू टेबल टूल्स, create, click on new table. Let's name this as date table. Let's make use of the calendar function. Then start date के लिए डेट ले लिया, डेट बोलेंगे 2025 comma 1 comma 1. Then we need the end date, so again 2025 comma 12 comma 31. Okay, I think that sums up the entire year. एंटर कर दिया, वी हैव गॉट द डेट टेबल. इसको फटाक से फॉर्मेटिंग कर लेते हैं. फॉर्मेटिंग में आई विल मेक दिस एज शॉर्ट डेट, दिस लुक्स बेटर. विद इन द सेल्स टेबल ऑल्सो इसको शॉर्ट डेट है ही ऑलरेडी, कुछ करने का जरूरत नहीं है. देन वी नीड टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू टेबल्स. ओके, तो उसके लिए आई जस्ट ड्रैग दिस डेट हियर, as we know that there is a one-to-one relationship between these two tables. Okay, because 1st January रहेगा या कोई भी डेट रहेगा, इस टेबल में एक बार है, इस टेबल में भी एक बार है. सो द रिलेशनशिप इज 1-to-1 and which DAX or Power BI has already identified. So I'll click on save. The moment I click on save button, the relationship is established. Now let's see what happens in the visual. Okay, now I think we have got something, and I think we have got the correct answer now. So just in case you're still not clear, 1st of February 1413 is the sale. Okay, now I want to see 1st of March में क्या है, तो I'll go to 1st March. तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं अभी 1st of March में जो सेल है दैट इज 1194. बट एक महीने पहले का कितना है, मतलब कि 1st of February का कितना है, 1413 यहाँ पे दिखा रहा है. बट इज दिस रियली करेक्ट? तो आई जस्ट स्क्रॉल अप एंड लेट्स सी. देखो 1413 है, सो दिस इज करेक्ट. तो ये मैंने मंथ के लिए किया था, राइट? सो आई कैन डू द सेम थिंग फॉर अ डे. ओके, सो आई विल सिलेक्ट डे हियर, एंड दैट शुड गिव मी प्रीवियस डे वाला डेटा मेरे को मिल जाएगा. तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अभी 3rd of January में मेरे को देखो ये 2nd वाला डेटा आ रहा है. 4th में देखोगे तो ये 3rd वाला डेटा आ रहा है.
तो लाइक दिस वी कैन मेक यूज ऑफ द डेट ऐड फंक्शन इन डैक्स। ठीक है, आई होप इसको इससे आपको क्लैरिटी आया रहेगा कि वाई एंड हाउ डू वी यूज दिस। Please make sure that you practice it. I am sharing the dataset and the PBIX file in the description of the video. Thank you so much for watching.